Sangeeta madam, we can start. Yeah, sure, sure. We can start. नमस्कार और सुस्वागतम मशवरा के इस 55वें एपिसोड में. दिस इज डॉक्टर आलोक. आई एम 24/7 सर्विंग फॉर द मनोविकास फैमिली with my sweet daughter and my dedicated wife and one national awardee. As a rehabilitation specialist for persons with intellectual and developmental disabilities and the founder of Manovikas family, I love and celebrate diversity every moment in my life. Welcome to special episode of Mashwara 55.0 episode. This is a live consultation for persons with intellectual and developmental disabilities during the coronavirus outbreak. मशवरा के इस 55वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं. कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए एक लाइव परामर्श का माध्यम है. I welcome all our guests and audience. Let's talk. Today we'll talk about the scholarship schemes for the students with disability. तो आज हम दिव्यांग छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, भारत सरकार के विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे. Somehow we should know scholarship is an amount of money that is given to a person in order to help to pay for their studies. The scholarship, the government of India supports through various scholarship schemes and extend financial support to the student with disability to pursue studies from school to skill development to higher education. In this Mashwara episode, we are talking about the scholarship schemes available for the student with disabilities with the government of India. We will highlight about two ministries: Ministry of Human Resource and Development (MHRD) and the Ministry of Social Justice and Empowerment. छात्रवृत्ति वह धनराशि है जो किसी छात्र को दी जाती है ताकि वह अपनी पढ़ाई के लिए भुगतान कर सके. भारत सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग छात्रों को सहयोग करती है और उनको स्कूल में, चाहे वो कौशल डेवलपमेंट की प्रशिक्षण हो या हायर एजुकेशन की पढ़ाई हो, उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती रहती है. मशवरा का यह प्रकरण हम आज कुछ ऐसे छात्रवृत्ति योजनाओं पे बातचीत करेंगे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा दी जाती है. Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, through its Department of Empowerment of Person with Disabilities, Divyangjan, is implementing an umbrella scheme for the scholarship of students with disability for their empowerment through education. There are six types of, or we can say the six components in these schemes. We'll talk about. There are the pre-matrics, post-matric, then top class education, national overseas scholarship, national fellowship and free coachings. These are the provisions with the government of India. They are providing all such facilities through the Ministry of Social Justice and Empowerment. भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से उनके जो दिव्यांगजन हैं उनके शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक छात्रवृत्ति योजना लागू कर रही है, चला रही है. इस योजना में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास एजुकेशन, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, अगर कोई दिव्यांगजन देश के बाहर पढ़ना चाहता हो तो उसके लिए स्कॉलरशिप, नेशनल फेलोशिप और फ्री कोचिंग की सुविधा के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है. और जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है वहां पर देयर इज द स्कीम इज कॉल्ड सक्षम, इज ए एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट स्कीम्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, aimed and empowered encouragement and support to specially abled children to pursue technical education. This is an attempt to give every young student who is otherwise specially abled the opportunity to study further and prepare for successful future through the technical knowledge and education. सक्षम एक मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की योजना है जिसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि तकनीकी शिक्षा को
आगे बढ़ाने के लिए सभी को और विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना। विशेष रूप से अगर हम बात करें, जो दिव्यांग छात्र, युवा छात्र आगे की पढ़ाई करने में करना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, तो यह एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे आप टेक्निकल और स्किल संबंधी बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं सक्षम योजना के तहत, सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत। और हम हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करते हैं। आपका खैर मकदम है, आपले स्वागत आहे, बड़कम, सत श्री अकाल। This Mashwara live consultation is through Zoom and Facebook Live for persons with intellectual and developmental disabilities, their families, caregivers, professionals during the coronavirus outbreak. यह मशवरा लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान फेसबुक के माध्यम से लाइव है, और यह लाइव जो है बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, उनके देखभालकर्ताओं के लिए या पेशेवरों के लिए लाइव है। मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए है और आप सभी से मशवरा है, कृपया हम एक साथ मशवरा में जुड़े रहें। मशवरा एंड मनभावन टीम, we would like to announce you here, Mashwara and Manbhavan team is in the collaboration of Manovikas family is celebrating virtual Diwali Mela on Tuesday, November 10th at 3 p.m. on Zoom and other social media platform. So if you please support us, and once you support us, you can make a special winning prizes also. You can win the prizes also. To make your Diwali special, Manovikas family is running the Diwali bumper prizes. The lucky winners will get the prizes up to the maximum 50,000 rupees. So how you can enter these things? So we will share you the link within while we'll talk about this again. And once again, I welcome and appreciate our special guest to join this Mashwara Live. This Mashwara episode is bringing a very important topic, and this is my pleasure to welcome our speaker, Dr. Amit Kumar Srivastava ji. He is a director in Student Development Cell, All India Council for Technical Education, AICTE, and sir has also worked with the various universities and various education sectors. So we welcome you, sir, with your please enrich us with your knowledge and everything. And we have the next our speaker, our expert, Madam Sangeeta Sinha ji. She is the HR manager and project officer advocacy. She is working for Manovikas Charitable Society. This session will be presided by our president, Dr. Nimesh Desai sir, as well as our mentor, feedback guru, Mr. J.C. Gupta sir. They will join in a short while. We have the sign language interpretation by Mrs. Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मशवरा लाइव में। आभार होने के लिए, शामिल होने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। पुनः स्वागत करता हूं हमारे एपिसोड में हमारे विशेष वक्ताओं का, डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव जी का, मैडम संगीता जी का। और मशवरा में राखी रमोला द्वारा सांकेतिक भाषा में अनुवाद उपलब्ध है। आप उनके विंडो में अगर किन्हीं को भी अनुवाद की आवश्यकता हो तो आप उनके विंडो में देख सकते हैं। एंड वी हैव, मैं पुनः एक बार आप सभी का मशवरा में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और विल गो टू आवर एक्सपर्ट डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव जी। As I talked about the AICTE, All India Council for Technical Education, this is a statutory authority for planning, formulating and maintaining the norms and standards, quality assurance through the college or school accreditations, then funding in the priority areas, monitoring and evaluation, maintaining the priority of certification and awards, ensuring the coordinated integration, development and management and technical education. I would like to mention here, this is my privilege to tell you, Manovikas is one of the, we are also the one of the skill knowledge provider of the affiliated, or we can registered with the AICTE, All India Council for Technical Education. भारत में पहली बार जो हमारे मानसिक रूप से जो दिव्यांगजन है, बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन है, उनके लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने मनोविकास को एज ए स्किल नॉलेज प्रोवाइडर का एक रजिस्ट्रेशन भी प्रदान किया है। और यह रजिस्ट्रेशन हमें प्रधानमंत्री कार्यालय के भी सहयोग के द्वारा मिला है। सो वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट
we have the good association with the AICTE. I would like to mention here in our Golden Jubilee episode, the chairman of the AICTE, Professor Sahab, he was here. So we welcome you, sir, Amit sir, and please tell us about your scholarship schemes that are available for the persons with disability. And without any further things, सर आप वो हमें बताइए कि जो AICTE के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या चीज हम दिव्यांगजनों को सहायता कर सकते हैं उनसे। जी सर। थैंक यू सो मच आलोक जी, संगीता मैम और सभी मसोरा की जो टीम मेंबर्स हैं जो आज इस लाइव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भारत के विभिन्न राज्यों प्रांतों से जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम को लाइव वॉच कर रहे हैं थ्रू फेसबुक और थ्रू जूम मीटिंग। So initially, I thanks to the Alok ji, Sangeeta ji, and all the participants across the India for participating in this deliberations on the various scholarship schemes for the disabled, for the especially abled students provided by the whether it's the All India Council for Technical Education or any other ministry of the Government of India. Before we go, I just want to inform all of you about the AICTE. AICTE is a statutory body for the technical education in India. The major role of All India Council for Technical Education is to recognize, to ensure the quality education in the technical education area. Besides this, AICTE also funds various institutions in the overall development of the technical education through various schemes for the institutions. Also, we have number of schemes for the financial support to the students from the undergraduate to diploma to postgraduate to PhD level also. So I just want to share one of the small presentation to all of you containing all the details of the AICTE schemes, so that हम सभी लोग जो different schemes हैं उसके बारे में जान पाएं, उसकी what are the eligibility criteria for these schemes, so that the students who are pursuing the technical educations from the AICTE approved institution or its courses may apply for these scholarship schemes. आज की परिचर्चा में भी मुझे लगता है कि since the students from the across India participate from the north to the south to the west or southeast or to the east, so we will be bilingual in our conversation so that students from across the India would be able to understand what we want to convey, what we want to disseminate the information about the scholarship scheme. ग्रेट सर। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए क्या डिफरेंट तरह की जो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की विभिन्न स्कीमें क्या क्या हैं और किन स्कीमों के तहत जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। आलोक जी, स्क्रीन इज विजिबल? जी जी जी, इसको प्रेजेंटेशन मोड में कर देते हैं सर नीचे से। या आप या ग्रेट सर। बेसिकली जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एजुकेशन की वी हैव ए नंबर ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम्स अलोंग विद अदर सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। So I just want to highlight some of the major schemes of the All India Council for Technical Education for the academic year 2020-21। जो AICTE की विभिन्न स्कीमें हैं जो बच्चों के सपोर्ट के लिए, चाहे वो स्कॉलरशिप हैं या अदर फाइनेंशियल ग्रांट की स्कीम्स हैं, 2020-21 के सेशंस में जिन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो लाभदायक उनके लिए हो सकती हैं। जो सबसे पहला जो फोकस है, बिकॉज दिस स्कीम इज एक्सक्लूसिव फॉर द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द स्कीम इज AICTE SHAM scholarship scheme, and it provides financial assistance to the especially able students pursuing higher education, mainly technical degree and diploma. AICTE सक्षम स्कीम्स जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो डिग्री या डिप्लोमा मींस जो टेक्निकल डिग्री जैसे बीटेक या BE या बी फार्मा या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में AICTE अप्रूव्ड संस्थानों में जिन्होंने इस साल में प्रवेश लिया है या इस साल में प्रवेश करंट एकेडमिक ईयर में प्रवेश लेने जा रहे हैं। The major the eligibility criteria of this scheme is the students must be admitted in AICTE approved institution or courses in the first year of degree or diploma level course, or
second year of degree/diploma level course through lateral entry. The family income must be less than 8 lakh per annum, and there must be a maximum gap of 2 years from the eligibility qualification. Means for the degree level, the students must have completed 10+2 in 2020 or 2019 or 18, and for the diploma level program, they must have completed 10th in 2018, 19 or 20. The disability criteria is a minimum disability of not less than 40%, and this scheme is applicable only for the AICT approved courses in AICT approved institutions, mainly the BE, Bachelor of Engineering, Bachelor of Technology, B Pharma, Bachelor of Architecture or Polytechnic Diploma in the current academic year. जो सक्षम स्कीम है बेसिकली ये फर्स्ट ईयर के जो डिग्री और डिप्लोमा लेवल कोर्स से जो हैं जो हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम के हैं या सेकेंड ईयर में जो देयर इज वन स्कीम जिसमें जो बच्चे हैं सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशंस लेते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। जो टोटल फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 10+2 पास करने के बाद या 10th पास करने के बाद अगर डिप्लोमा में ले रहे हैं और 10+2 के बाद अगर वो डिग्री प्रोग्राम टेक्निकल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशंस ले रहे हैं। जो डिसेबिलिटी है 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और मेनली ये स्कीम जो है वो AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या AICT अप्रूव्ड कोर्सेज के लिए ही एप्लीकेबल है। जो सबसे द बिगेस्ट advantage of this scholarship scheme is it provides scholarship to all eligible specially abled students. It means those students who fulfill the minimum eligibility criteria of the scheme, they will be given financial support under the AICT Saksham scheme. So there is no restriction in number of scholarship, there is no state-wise quota, there is no reservation. So all the eligible specially abled students will get support under the AICT Saksham schemes. सक्षम स्कीम में कोई कोटा या कोई लिमिटेशंस नहीं है और इस स्कीम के तहत सभी लोग जो सभी स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी जो हम लोगों ने इससे पहले की स्लाइड में डिस्कस किया था अगर उसको वो सेटिस्फाई बच्चे करते हैं। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है दिस स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 50,000 per annum for every year of study. It means 50,000 for the first year, 50,000 for the second year, and 50,000 for the third or fourth year for the 4-year degree program, and for 50,000 every year for a period of 3 years for a diploma level program. And the student has liberty to spend this scholarship in purchase of laptop or computer or stationery, books, equipment, software, etc. So there is no restrictions on the nature of the item to be purchased from the fund, from the support, from the financial support which they receive, being a beneficiary of this scholarship scheme. इस छात्रवृत्ति स्कीम में सभी जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको 50,000 रुपये हर साल की जो स्कॉलरशिप दी जाएगी और ये 50,000 रुपये एक साल के लिए ही नहीं है। ये अगर जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हर वर्ष मीन्स 4 साल के लिए 2 लाख रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा और अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो उसमें 3 साल तक के लिए 1.5 लाख रुपए का हर साल 50,000, 50,000 और 50,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में सपोर्ट दिए जाएंगे। ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। AICT अपनी स्कीम्स में किसी भी तरह की ना ही हम कोई डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि फी रिसीट लगानी है या कंप्यूटर परचेज का कोई रिसीट लगानी है। ये स्टूडेंट्स के ऊपर लिबर्टी है, वो अपने हिसाब से जो उनकी ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के अनुसार इस अमाउंट को खर्च कर सकते हैं। तो ये मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु आर वर्किंग विद द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स, to kindly promote this scheme across the specially able students who are going to take admission in the AICT approved technical courses in the current academic year. Earlier, till last year, there is a restriction in number of scholarship, means there is a fixed number of scholarship under the Saksham scheme. But from the current academic year, under the honorable leadership of honorable chairman sir, we have enhanced the number of scholarship to unlimited number for under the Saksham scheme. So I request all of you to kindly avail the benefit under the scheme so that all the eligible students may kindly apply for the scholarship scheme.
I just want to inform all of you that in the last year, approximately 1,500 specially able students had taken admission in the first year across different engineering colleges in India. Although we try our level best to promote, to inform the students about these schemes, but still a number of students are not availing, not applying for these scholarship schemes. So this year we have simplified the process. We have removed the different documents to be uploaded by the students, and now it is there is a no restriction in number of scholarships. मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस स्कीम को जो खासकर स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए है, अगर वो टेक्निकल एजुकेशन कोई भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में इस साल प्रवेश ले रहे हैं, या जो डिग्री में प्रोग्राम बी या बीटेक में ले रहे हैं, या बी फार्मा या बी आर्किटेक्चर में ले रहे हैं, तो प्लीज उनके लोगों के बीच में प्रमोट करें, उनको बताएं, जिससे कि सक्षम स्कीम्स के बारे में वो लोग अप्लाई कर पाएं. Beside Saksham scheme, AICT also have large number of other schemes. Although they are not especially focused upon the specially able students, but there are the students from the specially able student category. They are also availing the benefit under these schemes. One of the scheme is AICT Pragati Scholarship Scheme for girl students. Is basically it provides financial assistance to the girls student pursuing degree, diploma in technical education. जो AICT प्रगति स्कीम है, वो जो बच्चियां हैं उनको सपोर्ट करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा में जो लोग इस साल में एडमिशन्स ले रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है. द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस स्कीम इज ऑल्सो सिमिलर टू द सक्षम स्कीम, विद द एक्सेप्शन दैट ए मैक्सिमम 2 गर्ल्स पर फैमिली. जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सक्षम स्कीम्स के हैं, मेनली वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया AICT प्रगति स्कीम्स के भी हैं, जिसमें द स्टूडेंट्स मस्ट हैव टेकन एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा लेवल कोर्स और सेकंड ईयर ऑफ डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा लेवल कोर्स थ्रू लेटरल एंट्री. द टोटल इनकम ऑफ फैमिली मस्ट बी लेस देन 8 lakh per annum, and there must be a maximum gap of 2 years from the eligibility educational qualification. The admission criteria is similar. The students must be admitted in the AICT approved courses and AICT approved institutions in the current academic year. The total number of scholarships under the Pragati is 10,000. More than 10,000 basically. 10,000 is for 23 states and union territories, and for the Jammu Kashmir, for the Ladakh, for entire northeastern states. For the Andaman and Nicobar, Lakshadweep, there is no restriction in number of scholarship under the Pragati scheme. जो प्रगति स्कीम AICT की है, उसमें मैक्सिमम जो 10,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप सपोर्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया. जो 10,000 हैं वो 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए हैं. लेकिन इस स्कीम में भी हम सभी लोगों ने, जो जम्मू कश्मीर से जो गर्ल्स हैं या लद्दाख से हैं, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम है, जो आसाम है, मिजोरम है, मेघालय है, तो इन सभी स्टेट्स, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की सभी जो गर्ल्स हैं, उनको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड AICT करेगी. देयर इज ऑल्सो वन क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन, SC, ST एंड OBC विद 7.5%, 15% और 27% फॉर द OBC. जो इन स्कीम्स में रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो ST के लिए 7.5% है, SC के लिए 15% है और OBC के लिए 27% है. The financial support under this scheme is also 50,000 per annum for every year of study, which the students may incur expenditure on the purchase of the laptop, computer, stationery, books और software. इस स्कीम में भी जो AICT फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो 50,000 पर एनम है हर साल की पढ़ाई के लिए, और इस अमाउंट को वो कहीं भी बच्चे खर्च कर सकती हैं, जो कॉलेज फीस देने के लिए या कंप्यूटर, स्टेशनरी आदि परचेज करने के लिए. So I request all of you to kindly disseminate information about these two important scholarship schemes of the AICT. We also have one AICT postgraduate fellowship. Basically, this scheme provides financial assistance to full-time GATE GPAT qualified students pursuing the post-graduation. AICT पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप फाइनेंशियल असिस्टेंस उन बच्चों को प्रोवाइड करती है जो AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में और AICT अप्रूव्ड कोर्सेज में गेट और जीपैट क्वालिफाई होने के पश्चात PG करना चाहते हैं. तो बहुत से ऐसे स्पेशली एबल्ड बच्चे भी होंगे जो अक्रॉस इंजीनियरिंग कॉलेज में इस साल से उन्होंने अगर फाइनल ईयर पास किया है और उसके बाद दे हैव क्लियर द गेट एंड जीपैट,
So they can also go for the PG scholarship. अगर वो किसी भी AICTE approved institutions या courses में admissions लेते हैं, so they can also avail the benefit under the AICTE postgraduate fellowship. So this scheme is also open for the specially able students along with the other students too. The eligibility criteria under this scheme is the GATE or GPAT scorecard, must be a full-time scholar and must have taken admission in the ME, MTech, M Architecture, M Pharma in the current academic year. The unique feature of this scheme is the financial support spread across a per month. So it's basically 12,400 per month with a maximum 24 months or for the duration of the course. PG स्कॉलरशिप में AICTE जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो 12,400 रुपये पर मंथ है और जो मैक्सिमम 24 मंथ या जो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम है उस तक सीमित रहता है. One of the unique scheme is also supported by the AICTE to provide support to students for participating in the competition abroad. There are a large number of competitions organized by the different universities, whether it's in the United States or UK or European countries. So AICTE also funds support to students to participate, to visit overseas country for the assistance to participate in those competitions. The eligibility for this scheme is a minimum of 2 to 10 students pursuing degree in engineering technology from AICTE approved institutions, and the team must have one top honors in the national level event. So if any of the specially able students who are currently studying in the engineering education across India in the AICTE approved institution, they may also avail the benefit for participating in various competition abroad by applying under the AICTE support to the students for participating in competition abroad scheme. AICTE की जो ये स्कीम है वो बेसिकली उस सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो भारत के बाहर विदेशों में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है. और कोई भी स्टूडेंट्स अगर इसमें जाना चाहता है तो वो हमारे पोर्टल पे, हमारी वेबसाइट पे जो फॉर्म्स है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा. और इसमें जो सपोर्ट है वो 1 लाख रुपए पर स्टूडेंट है. तो टोटल 10 लाख, अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 लाख का सपोर्ट AICTE प्रोवाइड करती है. For the engineering student also, if any of the students from the specially able category is part of this webinar, so we also have one scheme of AICTE INE travel grant scheme for presenting their research paper in the conferences abroad. So if any of the students has been selected for participation or presentation in the paper overseas, they may also apply for getting support under the AICTE INE travel grant. So we also provide approximately 1 lakh per student support for participating in the overseas conferences. And the eligibility is the BE, BTech final, pre-final or final year student with a minimum CGPA of 7.5 or 65% or above. कोई भी स्टूडेंट, वेदर इज स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट और एनी अदर, इफ अगर वो चाहते हैं कि बाहर में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पेपर्स प्रेजेंट करना चाहते हैं तो AICTE की INA ट्रेवल ग्रांट स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव कर सकते हैं, जो प्री फाइनल और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को जो पेपर्स है, जो कॉन्फ्रेंसेज है उसमें पेपर प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देता है. तो इसके लिए भी INA की वेबसाइट पे जाके डिटेल्ड एप्लीकेशंस को सबमिट करा जा सकता है. Now, one of the important point is how to apply, especially if we look into the Saksham scheme or Pragati scheme, what are the different processes through which the students have to go through for the submission of the online application. So in briefly, we will share about the detailed process of submission of the online application for the Saksham scheme, because Saksham is exclusively for the specially able student, and subsequently in brief about the other schemes of the AICTE. जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर कोई सक्षम के अंतर्गत स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं, अपना फॉर्म जमा करना चाहते हैं, तो उनको कहाँ पर अप्लाई करना और किस तरह से इस स्कीम के तहत अप्लाई करना है. जो सक्षम, बेसिकली सक्षम और प्रगति के लिए कॉमन पोर्टल है जो भारत सरकार का है, जिसमें देयर इज वन पोर्टल नेम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल. So it is from the academic year 2021,
the AICT had moved two of its scholarship schemes, Saksham and Pragati, on the National Scholarship Portal. This portal is a very unique portal. I mean, once it never in the initial. I mean, whenever the student tried to submit their applications, this portal just capture the basic information, educational qualification, and income criteria and other details, and automatically after the submission of the form, or automatically after the saving of all the information, it will reflect the eligible scheme, whether it's the AICT scheme or the UGC scheme or the Ministry of Minority Affairs scheme. So it consists of all the schemes of major managed by the different ministries of the government of India, whether it's a top class or any other scheme. So this is the very robust and unique portal divided by the and managed by the mainly under the direct control of the DBT mission of the Cabinet Secretariat. So for the AICT schemes also, the students has to visit on the National Scholarship Portal, where they have to go through the online application process for the submissions of the application process. So this is the landing page of the National Scholarship Portal, where the students has to go for the new registration. जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसका एड्रेस है scholarships.gov.in, जहाँ पर बच्चों को जाके सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है. Then all the details like name, mobile number, email ID, date of birth, etc. need to be entered in the registration process. इस रजिस्ट्रेशन पेज पे बच्चों को सभी डिटेल्स, जिसमें नाम हो गया, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि भरना होता है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली यूजर नेम और पासवर्ड उनके मोबाइल पे SMS के थ्रू रिसीव होता है. Subsequently, they have to click on the login, then they have to enter the application number and the password along with the captcha, and this page will be reflected. So in this particular page, they have to fill all the information related to the scheme, and when they click on save, automatically the scheme related to that particular category will be reflected. तो इस जो बहुत यूनिक पोर्टल है भारत सरकार का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो यहाँ पर जाके सभी स्कीम्स के बारे में, खासकर AICT की प्रगति और सक्षम के बारे में भी अप्लाई करा जा सकता है. Now, for the other schemes of the AICT, for the PG scholarship, the students have to apply on the AICT portal. The URL is given on the slide. And for the AICT support to students for participating in competition abroad, they have to submit hard copy to the AICT headquarters. Soon we are going to make this also online, so that there is no need to submit the hard copy of the applications. For the AICT INAE travel grant, the student has to visit the INAE website and apply there. जो AICT की अन्य स्कीमें हैं, जैसे AICT पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप है, तो उसकी एप्लीकेशंस जो छात्र हैं उनको AICT पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. जो नेक्स्ट स्कीम है AICT सपोर्ट टू स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन अब्रॉड, उसके लिए जो AICT की वेबसाइट पे फॉर्म है उसको भर के सबमिट करना होगा हार्ड कॉपी में. और तीसरी स्कीम जो AICT INAE ट्रेवल ग्रांट है, उसके लिए INAE की वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट्स को अप्लाई करना होगा. नाउ द नेक्स्ट इज द डेडलाइंस. ऑल द मोस्टली द स्कॉलरशिप्स आर ओपन राइट नाउ. फॉर द AICT Saksham and Pragati scholarship scheme, the last date is 30th November 2020. For the AICT support to students for participating in competition abroad and AICT INAE travel grant scheme, it's open throughout the year. So anytime students may apply and may submit their applications. For the postgraduate fellowship, the last date is 31st December 2020. AICT सक्षम और प्रगति के लिए जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है. स्टूडेंट्स को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करना है. AICT support to students for participating in competition abroad and AICT INAE travel grant scheme के लिए विद्यार्थी कभी भी साल भर में जमा कर सकते हैं. और AICT पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप के लिए जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2020 है. Some of the important contact details to interact with us, if any of the students have any query related to the various schemes of the AICT, they are most welcome to write to us on Pragati. For Pragati scheme, it's pragati@aict-india.org. For the Saksham scheme, it's saksham@aict-india.org.
And for the PG scholarship, it's a pgscholarship@aict-india.org. जो हमारे जो लिसनर्स हैं इस प्रोग्राम के, अगर उनको कोई भी क्वेरी है तो इन ईमेल आईडी पे भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। प्रगति के लिए pragati@aict-india.org, सक्षम के लिए है saksham@aict-india.org, एंड फॉर PG स्कॉलरशिप्स के लिए pgscholarship@aict-india.org. We also have two dedicated lines to resolve to look into the various queries of our students. The numbers are 011-2958-1118 and 1119. So I request all of you to kindly disseminate the information about AICT scholarship schemes among the especially able students, so that especially for the Saksham schemes, most of the students could be get the benefit of the Government of India Ministry of Education. So I again now subsequently we will go for the after the completion session we'll go for the question answers. And again I thank Alok ji and his team, Manovikas team, for inviting us to have a detailed discussion on the AICT scholarship scheme for the students. Thank you very much. Thank you sir, always pleasure sir. आप बहुत ही अच्छा था ये, तो आपने पूरा डिटेल्ड एक इंफॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड विद अस, एंड दिस इज समहाउ वेरी यूजफुल फॉर ऑल द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अराउंड अस। अगर किसी को भी कोई भी इस तरह की स्कीम्स की जरूरत है, आप ये मत सोचिए कि ये अगर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे बच्चे आज जैसे हम लोग मनोविकास थिंक कॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो आने वाले समय में 1-2 साल में हमारे जो पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको भी ये मिलेगा। तो आई वुड लाइक टू क्लियर यू हियर, एज पर द लॉ देयर इज ए कॉल्ड बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति का डिसेबिलिटी जो है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसमें 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी अगर मेंशन्ड है तो उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। तो सरकार की सारी सुविधाएं बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए होती है जिनका सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और उसमें 40% से ज्यादा है। और आज आपने सर जो 2 प्रगति और सक्षम के बारे में बोला है, आई थिंक जो हमारे बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनको की ये जरूरत है और वो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए। और एक तो बहुत ही उम्दा स्कीम था आपका कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं और उनको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो हर जगह नहीं मिलता है, हर आपको स्कॉलरशिप स्कीम में इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलती जो आपने बताया। आई वुड लाइक टू गो टू मैडम संगीता जी। बिफोर यू स्टार्ट, I want to highlight one point. Before 2010, एक बार हमारी कुछ गवर्नमेंट एजेंसी ने ये कहा था कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं, they can't go beyond 10th class or 8th class. But we have thought about it. With the IGNOU support, we have started the first IGNOU community college from at Manovikas. सर एक चीज हम लोग और अमित सर आपसे सहायता करेंगे कि इग्नो कम्युनिटी कॉलेज तो बंद हो गया है, वो स्कीम आपके पास स्कीम है। अगर मनोविकास किसी तरह से उसमें हमारे जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट हैं वो किसी तरह से शामिल हो जाएं, तो जो ये स्कीम है और जो आज हमारे पास सुनने वाले जो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस है, इनको बहुत सुविधा मिल सकती है। तो थोड़ा सा हम लोग कभी मिलके इस पे भी चर्चा करेंगे। तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कि जब हम लोगों ने कम्युनिटी कॉलेज खोला था तो उसके बाद वी हैड द फर्स्ट कन्वोकेशन इन 2013। मैं ये बात पहले भी चर्चा कर चुका हूँ और वहां पर हम लोगों ने ये प्रमाणित किया कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो सिर्फ 10वीं क्लास नहीं, वो कॉलेज लेवल में भी जा सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री भी कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री भी कर सकते हैं, डिग्री भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल में जा सकते हैं। और जो मैं पहले अभी अमित सर से पहले जो मैंने बात किया था कि मनोविकास को स्किल नॉलेज प्रोग्राम का एक सपोर्ट मिला हुआ है, एक रजिस्ट्रेशन मिला हुआ फ्रॉम AICTE, मीन्स कि वो टेक्निकल एजुकेशन में भी आ सकते हैं। तो हम लोगों ने ये प्रूव किया कि नहीं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। और जब वो हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं पढ़ाई में पैसे जरूरत चाहिए,
बहुत तरह की बातें होती है, तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो सपोर्ट करती है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ड्यूरिंग आवर कन्वोकेशन टॉक अबाउट कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको भी पढ़ाई में रिजर्वेशन मिले, तो उनको भी रिजर्वेशन 1% मिला हुआ है, वो भी हायर एजुकेशन कर सकते हैं, उनको भी डिफरेंट स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो मैं संगीता मैडम हमारे यहाँ मोस्टली स्कॉलरशिप का प्रोग्राम डील करती हैं, और आई हैव सीन कि हमारे पास मिनिस्ट्री से एक दो लोग हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल था, नहीं तो हमारे पास मिनिस्ट्री से जो प्रॉपर लोग थे वो आते। मैं संगीता मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें वो बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू क्या क्या सुविधाएं हैं स्कॉलरशिप की, जो हमारे हर प्रकार के दिव्यांगजन उनका उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और थैंक यू मशवरा टीम टू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कॉलरशिप फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दिव्यांगजन। जैसा कि आपने देखा कि मशवरा में अम्ब्रेला डिसेबिलिटी अम्ब्रेला स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि अम्ब्रेला स्कॉलरशिप जो स्कीम है वो 1 अप्रैल 2018 को इसके बारे में पूरी चर्चा की गई और इसको रिव्यू करके ये बनाया गया। जो अम्ब्रेला स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें बेसिकली अभी 6 कंपोनेंट को बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और 6 कंपोनेंट पे बात की जा रही है। पहला जो कंपोनेंट है वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, तीसरा जो है वो टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्कॉलरशिप स्कीम है, और चौथा जो है वो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, और पांचवा जो है वो नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और लास्ट जो है वो फ्री कोचिंग फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी है। जो पहला प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है वो क्लास 9th और 10th स्टूडेंट के लिए दिया गया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो क्लास 11 पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी के लिए है। टॉप क्लास एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री जो अब्रॉड यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, और नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो एमफिल और पीएचडी इन इंडियन यूनिवर्सिटी जो इंडिया में बेस्ड यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा कर सकते हैं। और जो लास्ट है फ्री कोचिंग जो है इसके अंतर्गत कोई भी डिसेबिलिटी, कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर टेक्निकल एजुकेशन या कोई प्रोफेशनल कोर्स अगर करना चाहते हैं वो एंट्रेंस देके क्वालिफाई करके वो इस कोर्स में आ सकते हैं। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर एलिजिबिलिटी की कि इन जो भी 6 अम्ब्रेला स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें उनकी एलिजिबिलिटी किसकी हो सकती है। तो सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, जैसे कि अभी सर ने बताया कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी मोर देन 40% डिसेबिलिटी उसकी जो परसेंटेज होनी चाहिए। थर्ड, उनकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो किसी भी मेडिकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उनकी मान्य होनी चाहिए, तभी वो वहां काउंट होगी। चौथी जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 में जो 21 डिसेबिलिटी को इन्वॉल्व किया गया है वो सारे 21 डिसेबिलिटी वाले लोग इन स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और अगर किसी फैमिली में नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन, अगर किसी फैमिली में 2 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है तो तीसरा उसको स्कॉलरशिप वो अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर उस फैमिली में सेकंड चाइल्ड अगर ट्विंस है तो ये स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो उनके लिए एडमिसिबल होगा। छठा जो है, स्कॉलरशिप ओनली अवेलेबल फॉर द फर्स्ट ईयर, मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी सेम क्लास में दूसरे बार अगर वो रिपीट करेगा तो वो स्कॉलरशिप उसके लिए अवेलेबल नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी, ओनली फॉर 1 ईयर के लिए है। और लास्ट जो है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, मान लीजिए कि अगर एक साथ अवेल नहीं कर रहा है तो वो अगर किसी व्यक्ति को एक साथ 2 स्कॉलरशिप स्कीम मिल रही है तो उसमें उसको चूज करना पड़ेगा कि विच इज बेनिफिट फॉर मी। अगर उसके लिए जो फायदा है वो एक ही स्कॉलरशिप का वो फायदा एक समय में वो उठा सकते हैं। तो ये इसकी कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी है अगर आप अम्ब्रेला स्कॉलरशिप स्कीम से किसी भी तरह का फायदा लेना चाहते हैं।
दूसरा मैं चलती हूँ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट दिव्यांगजन है, उन्होंने क्या एनुअल उनका पेरेंटल और गार्जियन इनकम स्लॉट डिसाइड किया है। अगर मैं प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की बात करूं तो स्टूडेंट विद पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सभी सोर्सेस को मिला के, अगर उस फैमिली की इनकम सभी सोर्सेस को मिला करके 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, टॉप क्लास एजुकेशन, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम और फ्री कोचिंग फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, इन 3 स्कॉलरशिप स्कीम के लिए किसी भी फैमिली की इनकम जो है वो 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और नेशनल फेलोशिप के लिए नॉट एनी एनुअल सेलिंग, इसके लिए कोई भी एनुअल सेलिंग डिसाइड नहीं है। अब मैं चलती हूँ यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट दिव्यांगजन के लिए, जो गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्वेशन स्लॉट डिसाइड किया गया है। इन केस गर्ल्स विद डिसेबिलिटी, अगर टोटल जो हमारे फर्स्ट 3 स्कॉलरशिप स्कीम है, जो प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है और टॉप क्लास एजुकेशन है, इन तीनों स्कॉलरशिप स्कीम में 50% सीट्स जो है वो रिजर्व है गर्ल्स एजुकेशन के लिए। और नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में 30% सीट्स जो है वो फीमेल स्टूडेंट के लिए वो रिजर्व्ड रहती है। अगर मान लीजिए इस स्कीम में 30% एडिक्वेट फीमेल स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो ये सीट जो होती है फिर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इस सीट को ट्रांसफर कर देती है जो उसके लिए बेनिफिशियरी स्टूडेंट होते हैं उनको, और उनको उस कैंडिडेट को वो स्कीम ट्रांसफर कर दी जाती है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगी कि कौन सी इम्प्लीमेंट एजेंसी होती है जो वो 6 जो स्कॉलरशिप अम्ब्रेला स्कॉलरशिप स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट करती है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास एजुकेशन, इन तीनों स्कॉलरशिप स्कीम को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप जाएंगे, वहां पर आप इसको डायरेक्टली बेनिफिट इसमें मिलती है। लेकिन इस स्कॉलरशिप से जो भी अमाउंट दी जाती है वो बेनिफिशियरी को डायरेक्ट PFMS पोर्टल द्वारा प्राप्त की जाती है। मतलब पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में ये फंड ट्रांसफर कर दी जाती है। नेशनल फेलोशिप स्कीम, नेशनल फेलोशिप स्कीम जो है वो डायरेक्ट UGC के पोर्टल के माध्यम से और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के माध्यम से, ये दोनों क्योंकि इनकी नोडल एजेंसी है, ये दोनों नोडल एजेंसी नेशनल फेलोशिप स्कीम को देखती है और इसको आगे चलाती है। लेकिन और इनके द्वारा ही डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है। और नेशनल ओवरसीज और फ्री कोचिंग फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, इन दोनों स्कॉलरशिप स्कीम के लिए भी नेशनल एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी ये मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा इनको आगे चलाया जाता है और फिर इनको पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS के द्वारा इनके भी फंड को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो UGC और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये दोनों जो मिनिस्ट्री के द्वारा ही इनके जो इम्प्लीमेंट पूरी की जाती है। अब हम लोग एक एक करके सारे जो हमारे स्कॉलरशिप स्कीम है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो पहली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी के लिए, ये जो मैंने बताया आपको, ये क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए दी जाती है। ये बेसिकली सपोर्ट मिलता है उनको उनकी स्टडी के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए। और इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें 9th और 10th के जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल के ही स्टूडेंट होने चाहिए, चाहे वो सेंट्रल या वो स्टेट गवर्नमेंट के, वो उनके द्वारा ही पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये दी जा सकती है। पर ईयर 20,000 ये सैंक्शन की जाती है गवर्नमेंट से, इसकी सीट्स 20,000 वैकेंसी निकाली जाती है इसके लिए। और इसके जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो 3 तरह से डिवीजन है। सबसे पहला जो होता है इसमें मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है, दूसरा जो होता है डिसेबिलिटी अलाउंस दिया जाता है, और जो और तीसरा जो होता है बुक ग्रांट, मतलब बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए दी जाती है। जो पहला मेंटेनेंस अलाउंस है उसमें जो डे स्कॉलर होते हैं उनको 500 रुपीज पर मंथ दी जाती है। और जो हॉस्टलर होते हैं, हॉस्टलर का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर को रह रहा है
और कहीं रह करके अपनी वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसको 800 रुपीज पर मंथ दी जाती है। बुक्स ग्रांट के लिए अगर वो किसी तरह की बुक्स परचेज करना चाहता है, कोई स्टेशनरी परचेज करना चाहता है अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसको ₹1000 पर ईयर दी जाती है। डिसेबिलिटी अलाउंस, जो डिसेबिलिटी अलाउंस है, अगर विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं तो उनको ₹4000, हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसको ₹2000, फिजिकल डिसेबिलिटी है तो ₹2000, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो ₹4000, और इसके अलावा जो RPWD एक्ट 2016 में इन चारों के अलावा और जो अदर डिसेबिलिटी है उसमें से 2000 रुपया जो है उनको डिसेबिलिटी अलाउंस दी जाती है। और इनका प्रोसीजर क्या है? इनके प्रोसीजर के लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसमें www.scholarship.government.in ये इनका वेबसाइट है। इनके वेबसाइट पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को उस समय अटैचमेंट लगाना होता है, जैसे कि उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, उनकी फोटो होती है, उनका प्रूफ ऑफ एज होता है, और इनकम सर्टिफिकेट होती है, फी रिसिप्ट होता है, उनका जो ट्यूशन फी वो देते हैं उनकी फी रिसिप्ट भी अटैच करती होती है, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो लास्ट उन्होंने पास किया है। सपोज अगर 9th में एडमिशन ले रहे हैं तो लास्ट उसने जो 8th क्लास की क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो उसमें अटैच करनी होती है, तब जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये प्री मैट्रिक की पूरी डिटेल है। अब हम लोग चलेंगे पोस्ट मैट्रिक पर। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो 11th, 12th, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट, इन सभी चीजों में अगर कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है, डिप्लोमा करना चाहता है, सर्टिफिकेट की डिग्री लेना चाहता है, और तो इनके लिए वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज ये याद रखना है कि आप उसे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं जो कि यूजीसी और AICTE, जैसा कि अभी अमित सर ने बताया कि AICTE के टेक्निकल एजुकेशन के अंडर जो भी आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है आप उसी कॉलेज में इसको अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री, डिप्लोमा और 10th, 12th की शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है? किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और बोर्ड से 10th पास करके आप पोस्ट मैट्रिक में, आपके पास पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेने के लिए 10th पास की सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट एक साथ 2 डिफरेंट कोर्स कर रहे हैं तो सिर्फ उनको एक कोर्स के लिए ही स्कॉलरशिप मिलेगा। उसमें भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को ये चूज करना पड़ेगा कि विच इज बेनिफिट फॉर हिम और हर। जो उसके लिए बेनिफिट है आप उसी स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट है वो करेस्पॉन्डेंस की बात होती है। अगर कोई स्टूडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी करेस्पॉन्डेंट अगर वो करना चाहता है ये कोर्स, तो भी उनके लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके उसमें भी ये स्कॉलरशिप से वो उसका फायदा उठा सकता है। जैसे डिस्टेंस मोड में अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, अगर कोई मान लीजिए PWD एम्प्लॉयड है, वो नौकरी करता है और उसकी इनकम पेरेंट के इनकम के साथ कंबाइंड हो रही है, और उस इनकम लेवल को अगर जो पर्टिकुलर इनकम लेवल को डिसाइड है कि इस इनकम लेवल से वो एक्सीड नहीं करेगा, तब और वो स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अगर वो फायदा लेना चाहता है तो ले सकता है। मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन विद डिसेबिलिटी की इनकम और उसके पेरेंट की इनकम दोनों मिला करके एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो वो इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी फायदा ले सकता है। अब अमाउंट क्या होती है? जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अमाउंट जो होती है वो भी यहाँ पर एक मेंटेनेंस अलाउंस होता है। मेंटेनेंस अलाउंस में पूरे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को 4 डिवीजन किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए में जितने भी बैचलर डिग्री और करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मेडिसिन में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कोई मैनेजमेंट में जाना चाहता है, कोई एग्रीकल्चर में जाना चाहता है, तो जो भी इस तरह के टेक्निकल इस तरह के एजुकेशन में अगर वो बैचलर डिग्री करना चाहता है या पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है तो वो इससे कर सकता है, उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन ये उसी कॉलेज से कर सकता है जो कि यूजीसी
और AICTE से रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें इस ग्रुप ए में भी एक डे स्कॉलर होते हैं और हॉस्टलर होते हैं। जो डे स्कॉलर होते हैं उनको 750 रुपीज 750 रुपए पर मंथ मिलते हैं, और जो हॉस्टलर होते हैं उनको 1600 रुपए पर मंथ मिलते हैं। अब ग्रुप टू में जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जैसे कि पैरामेडिकल हो गया, बी फार्मा हो गया, LLP हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, ट्रैवल टूरिज्म हो गया, कोई बैंकिंग की हो गई, या कोई कमर्शियल आर्ट का कोर्स करना चाहते हैं, मतलब जितने प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं वो भी यहाँ से फायदा उठा सकते हैं। और उसमें भी जो डे स्कॉलर होता है उसको 700 रुपीज पर मंथ मिलता है, और जो हॉस्टलर होते हैं उनको 1100 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। ग्रुप 3 की हम बात करेंगे। ग्रुप 3 में ऑल अदर ग्रेजुएट जैसे कि BA, BCom, BSc ये डिग्री प्रोग्राम होते हैं। अगर इस तरह का डिग्री प्रोग्राम कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर करना चाहते हैं तो उसमें डे स्कॉलर अगर है, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर डे स्कॉलर है तो उनको 650 रुपीज पर मंथ, और हॉस्टलर को 950 रुपीज पर मंथ दिया जाता है। और ग्रुप 4 जो होता है वो जितने तरह के पॉलिटेक्निक या वोकेशनल कोर्सेज जो ITI से किए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं नॉन डिग्री कोर्सेज, नॉन डिग्री कोर्सेज में जो डे स्कॉलर होते हैं उनको 550 रुपए, और जो हॉस्टलर होते हैं उनको 900 रुपए दिए जाते हैं। तो ये सारा पोस्ट मैट्रिक का मेंटेनेंस अलाउंस पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए दी जाती है। अब हम सेकंड जाते हैं डिसेबिलिटी अलाउंस। जैसा कि मैंने प्री मैट्रिक में भी बताया था कि डिसेबिलिटी अलाउंस जो है वो विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए 4000 है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए 2000 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 2000 है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए 4000 है। और अदर डिसेबिलिटी जैसे RPWD में 2016 में जो अदर डिसेबिलिटी है उनके लिए 2000 है। इसके अलावा इसमें एक और फैसिलिटी होती है जो बुक अलाउंस दी जाती है। जैसे प्री मैट्रिक में 1000 रुपीज थी, लेकिन पोस्ट मैट्रिक में वो 1500 रुपए पर एनुअली, वो साल में एक बार आपको दी जाती है। अब चलेंगे तीसरे स्कॉलरशिप स्कीम पर, जो है टॉप क्लास एजुकेशन फॉर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहाँ एक चीज ये हमें ध्यान रखना है कि टॉप क्लास एजुकेशन पे हमारे जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है, हमारे स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं में एडमिशन ले सकते हैं। और ये हमारे मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे पूरी लिस्ट है जिसमें जो नोटिफाइड एजेंसी है वहां हमारे स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी आगे स्कॉलरशिप का फायदा ले सकते हैं। अब तक 2019 तक इसमें 240 ऐसे लिस्ट है नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन के, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने ये लिस्ट तैयार की है। और टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी को क्वालिटी एजुकेशन देना और पूरी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिलना चाहिए। They can study in the notified institution of excellence under the Department of Empowerment Person with Disability. अब इसमें टॉप क्लास एजुकेशन में पूरे साल में 300 ऐसी सीट जो होती है गवर्नमेंट देती है। 300 सीट में अब डिफरेंट इसके कंपोनेंट है स्कॉलरशिप स्कीम्स के। कंपोनेंट में जो पहला जो कंपोनेंट अगर मैं देख रही हूँ तो रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी। अगर जो भी ट्यूशन फी आप किसी कोर्स पे दे रहे हैं वो आपको अप टू 2 लाख 2 लाख के अंदर अगर है पर ईयर तो वो आपको रीइंबर्समेंट हो जाएगी। मेंटेनेंस अलाउंस जो टॉप क्लास एजुकेशन में है, जो हॉस्टलर है उनके लिए 3000 रुपये मेंटेनेंस अलाउंस है, और जो डे स्कॉलर है उनके लिए 1500 रुपये मेंटेनेंस अलाउंस है। स्पेशल अलाउंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को बहुत सारे स्पेशल सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे कि स्क्रीन रीडर होता है, एस्कॉर्ट चाहिए उनको कुछ हेल्पर चाहिए होता है, कभी कुछ हियरिंग एड की जरूरत होती है। तो इसके लिए 2000 रुपीज जो होती है वो पर एनम उनको दी जाती है, जो स्पेशल अलाउंस पे काउंट होती है। नेक्स्ट, बुक्स और स्टेशनरी। टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप में बुक्स और स्टेशनरी के लिए 5000 रुपीज जो है वो पर ईयर उनको दी जाती है। रीइंबर्समेंट ऑफ
एक्सपेंसेस फॉर द परचेसेस ऑफ द कंप्यूटर, अगर मान लीजिए टॉप क्लास एजुकेशन में कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैसे से कोई कंप्यूटर परचेस करता है अपने टेक्निकल एजुकेशन के IT के लिए, तो ₹30,000 जो होती है वो ग्रांट दी जाती है, वो एंटायर द ईयर, वो 30,000 रुपए वो उनको दी जाती है उसके लिए। नेक्स्ट होता है एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस। जो एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कोई परचेस करते हैं, खासकर विजुअल इम्पेयरमेंट लोग होते हैं, उनके लिए ब्रेल की जरूरत होती है, लैपटॉप विद स्क्रीन रीडर उनके लिए चाहिए होता है, टॉक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए हियरिंग एड चाहिए होती है, और विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए ब्रेल टाइपराइटर चाहिए होता है। तो जितने भी एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं उनके लिए 30,000 वन टाइम ये ग्रांट दी जाती है, जो पूरे एंटायर जो होती है वो कोर्स के बीच में उन्हें दी जाती है। ये सारी और इन सारी चीजों को कब किसको कैसे क्या देना है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में हमेशा रेगुलरली रिव्यू होती है, और रिव्यू करने के बाद उस पैसे को रीइंबर्स किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे फोर्थ पर। फोर्थ जो है वो नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है। जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी MPhil PhD करना चाहते हैं और इंडियन यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, अपने देश में करना चाहते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी है। टोटल जो सीट होती है वो 200 जो होती है वो फेलोशिप पर ईयर होती है। जैसे कि मान लीजिए जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, अगर कोई स्टूडेंट जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना चाहता है तो वो इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकता है। जो भी स्टूडेंट MPhil और PhD करना चाहते हैं उनको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि वो UGC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ही कर सकते हैं। मतलब जो भी कॉलेज UGC के अंडर आता है उसी कॉलेज से वो MPhil और PhD कर सकते हैं, और तभी उनको ये स्कॉलरशिप की मान्यता दी जाएगी। अब जो नेशनल फेलोशिप है जो इंडियन यूनिवर्सिटी से करते हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ऑब्जेक्टिव ये है कि फुल फाइनेंशियल उसको सपोर्ट मिलता है, और PWD कैन एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द लेक्चरर। अगर उनका MPhil खत्म हो जाता है तो कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर वो काम कर सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर हम देखें तो स्टूडेंट नीड टू कंप्लीट द MPhil PhD फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर 2 years। अगर मान लीजिए वो MPhil में एडमिशन ले रहे हैं और उस एवॉर्डी को, जो एवॉर्डी वो रिसर्च और MPhil कर रहा है, उसका रिसर्च जो है वो 2 years पे पूरी प्रोग्रेस हो रही है, एक अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, तो उसके टेन्योर को 2 years से बढ़ा के 3 years कर दिया जाता है, और उसको फिर GRF से SRF में काउंट कर दिया जाता है, मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो ये कंसीडर उसको कर दिया जाता है। पूरे रिसर्च वर्क को असेस करने के लिए जो एक कमेटी बनती है, और इस कमेटी में 3 लोगों का होना बहुत जरूरी है। पहले जो होते हैं वो उनके सुपरवाइजर होते हैं जिनके अंडर में वो MPhil कर रहे होते हैं, दूसरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, और तीसरा जो होते हैं एक आउटसाइड एक्सपर्ट होते हैं। ये तीनों मिल करके उनके MPhil उनके रिसर्च वर्क को इवेलुएट करते, रिव्यू करते हैं, तभी वो आगे उनके वो चलता है। और अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट विद PWD अगर उनकी प्रोग्रेस सही तरीके से नहीं हो रही है तो उनकी JRF जो होती है वो टेन्योर जो है वो टर्मिनेट कर दी जाती है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो JRF और SRF जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है और सीनियर रिसर्च फेलोशिप है, इनका जो पूरा साल होता है वो 5 years इनको दी जाती है, और इस 5 years में इनको इस पूरे फेलोशिप को पूरा करना होता है। इससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसकी स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो वहां उनको पूरी ग्रांट नहीं मिलेगी। अब इसके जो रेट है, जो फेलोशिप की जो रेट है वो इस प्रकार से होती है। जो फेलोशिप का पहला जो है वो 25,000 पर मंथ जो होता है वो इनिशियली 2 years के लिए जो JRF के लिए होता है वो दी जाती है, और 28,000 जब होता है वो SRF जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए दी जाती है। कंटीजेंसी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस इंक्लूडिंग जैसे फाइन आर्ट होता है, आर्ट्स होता है, उसके लिए 10,000 रुपीज जो होती है वो पर एनम वो 2 years के लिए दी जाती है, और 20,500 जो है वो पर एनम जो होता है वो रिमेनिंग टेन्योर के लिए दी जाती है। कंटीजेंसी फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अगर इस फील्ड में कोई कर रहे हैं
तो उनको ₹12,000 जो होती है वो पर एनम फॉर इनिशियल 2 इयर्स में दी जाती है और ₹25,000 पर एनम फॉर रिमेनिंग टेन्योर के लिए दी जाती है। डिपार्टमेंटल असिस्टेंस ₹3,000 जो है वो पर एनम पर स्टूडेंट जो होस्ट इंस्टीट्यूट है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी जाती है। और एस्कॉर्ट और रीडर असिस्टेंस, जैसे कि एमफिल करने वाले छात्र को भी अगर किसी तरह के एस्कॉर्ट की जरूरत होती है या किसी सपोर्ट की जरूरत होती है तो उसके लिए ₹2,000 जो होती है वो पर एनम वो उनको, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए या फिजिकल डिसेबिलिटी, इन दोनों के लिए ही ₹2,000 जो होती है एस्कॉर्ट और असिस्टेंस के रूप में दी जाती है। अब इनका प्रोसीजर क्या होता है? अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी फेलोशिप लेना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए टोटल सुपरविजन जो वो यूजीसी करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को अंडर उनके सुपरविजन से ही इस फेलोशिप की डिग्री दी जाती है। ये एडवर्टीजमेंट भी यूजीसी निकालती है। वन टाइम होता है, आपको 1 मंथ पूरा टाइम देती है इसको अप्लाई करने के लिए। कोई भी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट पास करके, जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जिसके पास है वही एमफिल के लिए अप्लाई कर सकता है। और अब इसमें जो हमारे स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको नेट पास होना जरूरी है। ये यूजीसी ने डिक्लेयर किया है कि एमफिल के लिए उनको नेट क्वालिफाई होना कोई भी जरूरी नहीं है। और इस पे जो फंड दी जाती है, जो फंड का रिइंबर्समेंट होता है बेनिफिशियरी के अकाउंट में, वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा ये फंड डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये हुई नेशनल फेलोशिप जो हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज में करेंगे। अब एक नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी अपने देश से बाहर जाकर के अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज में अगर मास्टर डिग्री और पीएचडी की डिग्री अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में करना चाहता है तो उसकी भी फैसिलिटी हमारी मिनिस्ट्री से दी जाती है। इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? जो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? जो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है और सेलेक्टेड स्टूडेंट है अब्रॉड और मास्टर डिग्री कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, मैनेजमेंट में है, अप्लाइड साइंस है, मेडिसिन है, तो ये है। अब डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी साल में 20 सीट्स ही केवल ऐसे स्कॉलरशिप के लिए रखती है। मात्र 20 सीट की ही वैकेंसी इसमें निकलती है, 20 स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? पीएचडी के लिए 55%, अगर आपके मास्टर्स डिग्री में 55% है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है, और मास्टर्स डिग्री के लिए 55% आपका अगर डिग्री में, आपके अगर डिग्री प्रोग्राम में 55% है तो आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज जो है वो बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए। इनकम जो है वो आपकी 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। अगर आप यूएसए में, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करना चाहते हैं तो वहां पर मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है। मेंटेनेंस अलाउंस में $15,400 फॉर ऑल द लेवल ऑफ कोर्स दी जाती है। और अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो वहां £9,900 मेंटेनेंस अलाउंस वहां दिया जाता है और फेलोशिप के लिए, पीएचडी के लिए। अब इसमें कंटीजेंसी, जैसे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से $1,500 जो है वो कंटीजेंस अलाउंस मिलता है, और यूनाइटेड किंगडम से £1,100 उनको कंटीजेंस अलाउंस मिलता है अगर वो कोई बुक्स लेना चाहते हैं, कुछ अपरेटस लेना चाहते हैं, या कोई स्टडी टूर करना चाहते हैं अपने पीएचडी के लिए। तो ये सारे, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं, कोई वर्कशॉप में जाना चाहते हैं, तो ये सारा कंटीजेंस अलाउंस जो होता है यूएस और यूके से उनको दी जाती है। इनका जो ड्यूरेशंस है वो पीएचडी के लिए 4 इयर्स है, और जो मास्टर डिग्री है उसके लिए 3 इयर्स है। अब हम लास्ट अपने स्कॉलरशिप स्कीम की तरफ चलते हैं, जो है फ्री कोचिंग फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। जो भी ये बेसिकली जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मान लीजिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर निकालती है तो उसमें हमारे स्टूडेंट भी अगर प्रोफेशनल कोर्स या कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें उनको एंट्रेंस दे के क्वालिफाई करना होगा। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाती है।
इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही होता है कि टू सपोर्ट इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। और इसमें भी 40% से ज्यादा, जैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी अभी आलोक से डिस्कस कर रहे थे, तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी बहुत ही जरूरी है। और ये कोर्सेज किस किस तरह के हम कोचिंग के कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, जैसे यूजीसी यूजीसी के अंडर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट की जाती है उसके लिए हम दे सकते हैं, एसएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट की जाती है उसके लिए हो सकती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो होती है उसके लिए हो सकती है, आईटीआई के द्वारा हो सकती है, क्लैट जैसे लॉ पढ़ना अगर कोई चाहते हैं उनके लिए भी हो सकती है, कैट जैसे मैनेजमेंट में कैट के लिए एंट्रेंस होती है उसके लिए भी फ्री कोचिंग जो होती है वो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलती है। अब इस पे आने के लिए, फ्री कोचिंग में आने के लिए किस किस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट यूजीसी के अंडर हो सकता है जिसको कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जिनके पास होता है और जिनका नाम, जिनके इम्पैनलमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंडर है। आप उसी जगह से अपनी इस कोचिंग के लिए का फायदा उठा सकते हैं और वही इंस्टीट्यूशन जहाँ की बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है और यहाँ पर स्टाइपेंड में मिलता है। जो स्टूडेंट यहाँ पर फ्री कोचिंग करते हैं उनको 2500 रुपये पर स्टूडेंट जो होता है उनको स्टाइपेंड मिलता है, जो बाहर के स्टूडेंट होते हैं उनको 5000 मिलता है और पर स्टूडेंट पर मंथ फॉर रीडर, जैसे अगर कोई मान लीजिए फ्री कोचिंग ले रहा है और उनको किसी भी तरह की स्कॉट की जरूरत होती है तो उसमें 2000 रुपया उनको दी जाती है ताकि वो स्कॉट की सुविधा के द्वारा ये आगे ले सकते हैं। तो ये रहा अम्ब्रेला स्कॉलरशिप स्कीम जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे दिव्यांगजन के लिए दी जाती है। और भी अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो www.disabilityaffairs.government.in की वेबसाइट पर जाइए और ज्यादा स्कीम्स का फायदा उठाइए। तो मैं तो यही कोशिश करूंगी कि हमारे जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो इसका फायदा उठाए। और मैं एक चीज और यहाँ बतानी चाहती हूँ कि हमारे 2014 में हमारे एक स्टूडेंट ने डिप्लोमा यहाँ से किया था और उसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से पूरी स्कीम से स्कॉलरशिप से रिफंड हुई थी फीस। तो सर, आलोक सर जी बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब बहुत सारा बृहत है। मैं यही देख रहा था कि अगर मैं AICTE का जो सक्षम और प्रगति स्कीम है, जो मिनिस्ट्री का अम्ब्रेला स्कीम है, और मैं ये भी आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है उसके पास अपना अलग से फंड्स होता है, वहां पर और स्कीम्स हैं जिसके थ्रू कि हम जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनकी पढ़ाई लिखाई को आगे कर सकते हैं और मैट्रिक से लेके पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, इवन की ओवरसीज में पढ़ाई तक की भी बात कर सकते हैं। एक चीज हमारे पास था कि एक व्यक्ति स्वर्ण मंडल जी हैं, वो MSW कर रहे हैं इग्नो से, तो उनको भी मिल सकता है स्कॉलरशिप या नहीं। तो वही है कि मैं हमेशा जो अभी संगीता मैडम ने कहा कि अगर इनकम क्राइटेरिया, अगर आपका इनकम क्राइटेरिया अगर सही है, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, अगर आपका इनकम क्राइटेरिया उस रेंज से ज्यादा है तो फिर मुश्किल है। अगर आपका इनकम क्राइटेरिया उस रेंज से कम है तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, और अगर आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है तो आप नेशनल पोर्टल पे जाकर अप्लाई कीजिए। इनफैक्ट मैं आज जो सक्षम वाले जो स्कीम्स थे, जो टेक्निकल एजुकेशन वाले स्कीम्स थे, वहां पर भी मैं बात कहूंगा कि हमारे जो बहुत सारे दिव्यांगजन हैं वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, टेक्निकल पढ़ाई करना चाहते हैं, क्राफ्टमैनशिप की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं होता। इवन की डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, फंड्स नहीं होता है। तो वो भी बहुत अच्छे फंड्स हैं, बहुत सारे फंड्स हैं। और एक सवाल था हमारे पास सर, ये जो प्रगति स्कीम है क्या उसमें भी इनकम क्राइटेरिया का या बात करते हैं, क्या उसमें भी इनकम क्राइटेरिया है क्या? हाँ, प्रगति में भी 8 लाख जो फैमिली की इनकम है वो क्राइटेरिया है। इनकम क्राइटेरिया एक जो है कि वहां पर है, अगर आप इनकम क्राइटेरिया को क्लियर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई 8th क्लास में है या कोई 10वीं में है, 10वीं का तो आपने बता दिया, 8th क्लास से नीचे है तो क्या उसमें कुछ है 8th क्लास से नीचे वाले बच्चों के लिए कोई स्कीम? मुझे लगता है जो ये जो प्री मैट्रिक वाली जो scholarship.gov.in जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप इवन फर्स्ट से शुरू हो जाती है।
तो अगर आप उस पे सबसे बेस्ट है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, उसमें लॉगिन क्रिएट करना है और रेस्पेक्टिव स्टूडेंट को अपना फॉर्म भरना है, ऑटोमेटिकली उसकी एलिजिबिलिटी के अनुसार स्कीम आ जाती है। सर तो ये जितने भी स्कीम्स हैं सर और मैडम, मैं दोनों से पूछना चाहूंगा, इसमें जो डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो एज पर द आरपीडी एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ब्लाइंड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, अदर डिसेबिलिटीज, तो सारे डिसेबिलिटी वाले लोग इसमें आ सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि ये ब्लाइंड के लिए होगा या ये ब्लाइंड के लिए इसमें नहीं होगा, इस तरह का कोई तो एआईसीटी में तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल वो 40% वाला जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट का है, केवल वही एप्लीकेबल जी। तो ओपन कोर्स में भी मिल सकता है। एक चीज और था कि जो हमारे पास डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में अगर कोई स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज है तो उसको भी मिल सकता है ये क्राइटेरिया। आपने संगीता मैडम आपने कहा कि अगर जी हाँ, इसमें भी मिल सकता है। बस उसको वही है कि वो जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि जो फी रिसिप्ट है वो सबमिट करेंगे, 40% से जो डिसेबिलिटी वो देना होगा, एड्रेस को प्रूफ देना पड़ेगा, फोटोज है, ये देख ले और तो आराम से ले सकते। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे स्टूडेंट डिप्लोमा जो है उनको हम लोगों ने उनके पेरेंट को बताया और उन्होंने इस स्कॉलरशिप को अवेल किया है। जी जी। और लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि मैंने भरा था मुझे नहीं मिला, मैं ये हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी एक ही पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, जो सर ने भी बताया, मैडम भी बता रही, कोई अलग अलग पोर्टल्स पे नहीं है। आप एक ही पोर्टल है, आप उस पोर्टल पे पूरा डिटेल अप्लाई कीजिए, सारा चीज अप्लाई कीजिए और फिर आपको मिल सकता है। मैं जानना चाहूंगा सर कि और अगर मान लीजिए कि AICTE के थ्रू अगर कोई बच्चा मतलब उस एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि हमें AICTE को भी खबर करनी पड़ेगी, उसको भी कोई एप्लीकेशन देना पड़ेगा कुछ या ईमेल नहीं, करना? ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सिंपली उनको जो एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर एडमिशंस लेना है और उसके बाद अभी 30 नवंबर तक जो लास्ट डेट है वहां तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी जी। हम हमारे एक श्रोता हैं, मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा जी। अनमोल जी, अनमोल गर्ग, आप अनम्यूट करें और पूछ सकते हैं अपना सवाल। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। मैं सबसे पहले सबका थैंक्स करता हूँ। थोड़ा जोर से बोलेंगे सर। मैं थैंक्स कर रहा हूँ, सबका बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैं अनमोल गर्ग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बठिंडा में लेक्चरर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से हूँ। ग्रेट सर। हाँ सर, इनके ना AICTE की जो आपकी स्कीम्स हैं, इनके कुछ रिलेटेड मेरे क्वेश्चन एक दो क्वेरीज हैं। जी एक तो ये सर, जैसे ना एक मार्क्स की भी आती है इसके अंदर स्कीम है कि प्रीवियस एनुअल रिजल्ट शुड नॉट बी लेस देन 50%। अब हमारा क्या है कि डिप्लोमा जो है सर वो सेमेस्टर सिस्टम में होता है और नॉर्मली जब आप अप्लाई करते हैं वो अगस्त सितंबर महीने में करते हैं, जब हमारा ऑड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। अगर सपोज मैं थर्ड सेमेस्टर में बच्चा अप्लाई कर रहा है, प्रीवियस ईयर उसका पास चाहिए, उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, सेकंड का भी अवेटेड है, और बाद में इनकेस उसकी रीपेयर आ जाए क्योंकि इसकी लास्ट डेट निकल चुकी होती है अप्लाई करने की, तो व्हाट वी हैव टू डू उस केस में क्या करेंगे सर? बेसिकली अगर एआईसीटी की स्कीम्स के बारे में बात करें तो एआईसीटी में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी है वो मैं दोबारा से सबको बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो एलिजिबिलिटी एआईसीटी की स्कीम्स की है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में 2020-21 में एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एडमिशंस ले रहे हैं इस साल के लिए, या एज ए लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में जो डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में लेते हैं या बी के सेकेंड ईयर में लेते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पॉलिटेक्निक और 10+2, तो केवल वही लोग इस साल के लिए एलिजिबल हैं। जो लोग फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के थे उनको 19 में अप्लाई करना था या 18 में अप्लाई करना था या 17 में अप्लाई करना था, तो अभी जो अप्लाई करेंगे वो केवल फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वही केवल या लेटरल एंट्री सेकंड ईयर के अप्लाई। सर मैंने उसमें एक मिनोरिटी का भी है, तो उसमें ये कंडीशंस हैं? हाँ, माइनॉरिटी में हो सकता है बिल्कुल, वो मैडम मुझे लगता है ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे उसमें। हाँ सर, उसकी थोड़ी सी क्वेरी अगर मिल जाए। हमने ना कई बार एक्चुअली कांटेक्ट करने की कोशिश की है, बट उस नंबर पे हुआ नहीं कभी AICTE में। जो पोर्टल एक्चुअली AICTE केवल अपनी स्कीम्स के बारे में बता सकती है, लेकिन माइनॉरिटी के लिए आपको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से ही संपर्क करना पड़ेगा। आई थिंक माइनॉरिटी में भी है, SC ST वाले में भी है, हर जगह है। आप बेसिकली हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो क्राइटेरिया है डिसेबिलिटी अगर है, चाहे वो किसी भी अदर कैटेगरीज में हो, लेकिन अगर सिर्फ डिसेबिलिटी वाले लोग हैं तो उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अदर अगर आप अदर कैटेगरीज में भी हैं, विद डिसेबिलिटी, विद माइनॉरिटी, डिसेबिलिटी विद SC ST, तो आप उस स्कीम से भी फायदा ले सकते हैं, SC ST वाली भी स्कीम से या माइनॉरिटी वाले से भी।
ले सकते हैं जी। सर को क्या करते हैं आप, अगर उसमें है कि लेस देन 50% शुड नॉट बी लेस देन 50%, तो व्हाट अबाउट एग्जैक्ट 50% परसेंटेज, क्योंकि कुछ बच्चे वो भी हैं जिनका प्रीवियस ईयर .50% पे आता है, तो वो एलिजिबल है या नहीं है? जनरली तो वैसे जो हम लोगों ने अपना देखा, जैसे एआईसीटी को पहली बार हम लोग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ले गए, प्रगति और सक्षम को, तो सबसे अच्छा ये है कि चाहे आप रिन्यूअल करिए या फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करिए, उसमें ऑटोमेटिकली जब आप उसमें डाटा फीड करते हैं एप्लीकेशंस में, तो स्कीम्स में एलिजिबिलिटी निकल के आ जाती है। तो मुझे लगता है कि पोर्टल काफी उनका बहुत अच्छा है, रोबोस्ट पोर्टल है। तो जब आपके स्टूडेंट्स उस पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें निकल के आ जाएगा कि बच्चा एलिजिबल है कि नहीं। ओके, यस। हमारे पास और भी जो दर्शक हैं, अगर वो पीजी इन रूरल एरिया में करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सर, एक लास्ट क्वेश्चन और, अगर कोई बीएड करना चाहते हैं, कोई बीई करना चाहते हैं, एक लास्ट बताइए। हाँ सर, अगर प्रीवियस एग्जाम क्लियर होना है, रिजल्ट है ना, उसमें अगर रीपीयर के बाद वो बच्चे ने क्लियर किया है तो हम उसको एप्लीकेबल मानेंगे या नहीं मानेंगे? सपोज करिए कि आप अगर एआईसीटी की स्कीम्स की बात करें तो उसमें किसी को सपोज करिए फर्स्ट ईयर में मिल गई, इस साल सिलेक्शन हो गया और बच्चे को 50,000 स्कॉलरशिप मिल गई। अब सेकेंड ईयर में सपोज करिए अगर किसी का बैक पेपर भी है, लेकिन अगर वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया है विद सम बैक पेपर या बैकलॉग्स, तो उस केस में एआईसीटी की स्कीम कंटिन्यू रहेगी। लेकिन हाँ, अगर वो पास नहीं हुआ है, उसी क्लास में है, तो उस केस में फिर एआईसीटी की स्कीम डिसकंटिन्यू होगी। सब में हर स्कॉलरशिप में यही है कि अगर आप कंटिन्यूअस स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं और फर्स्ट ईयर में आपका एक आध पेपर छूट गया है या कम नंबर आया है, आप उसमें एक्स्ट्रा वो एफर्ट करना चाहते हैं और आप प्रमोटेड होकर सेकेंड ईयर में चले गए हैं, तो आपके स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप 2 साल दूसरे साल भी फर्स्ट ईयर वाला पेपर नहीं क्लियर किए हैं, तब हो सकता है कि तीसरे साल में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिले। तो हमेशा ये आपको जब भी वो नेशनल पोर्टल पे जाते हैं तो आपका पूरा डिटेल्स वहां आ जाता है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि जो नेशनल पोर्टल है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज के मार्क्स से भी रिलेटेड है कि आपके जो मार्क्स अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आती है तो वो ऑलरेडी वहां से वो डाटा पूल हो जाता है स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पे। तो कभी कभी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ये इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं तो वो सही इंफॉर्मेशन फीड करें, सो दैट कि अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है तो वो मैच अच्छे तरह से कर जाए। मैं ये कह रहा था कि जो पीजी इन रूरल एरियाज करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, बीई करना चाहते हैं, कोई भी प्रोग्राम में करना चाहते हैं, जस्ट अभी जैसे सर ने बताया या संगीता मैडम ने बताया कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप के आप एलिजिबल हैं, आपको मिलेगा। जगदीश मेहर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जगदीश मेहर, अनम्यूट योरसेल्फ। जगदीश जी, जगदीश मेहर जी, नहीं जगदीश गुप्ता जी नहीं कर रहे हैं सर। ओके, प्रवीण जी, you want to just one question? Okay, प्रवीण जी, you ask your question. आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। मैं बी थर्ड ईयर 5th सेम में हूँ इलेक्ट्रिकल में। जी जी। तो मुझे एआईसीटी का वो फर्स्ट वाला स्कॉलरशिप मिल पाएगा? प्रवीण, आपको बेसिकली 2018 में अप्लाई करना था अगर आप थर्ड ईयर में इस समय हैं। हाँ सर, मैं D2D में हूँ तो 2019 में किया है अप्लाई। हाँ, 19 में अगर एडमिशन अगर आपने अप्लाई करा था कि आपने लास्ट ईयर इसके लिए, अगर फर्स्ट ईयर में जब थे आप? नहीं सर, D2D में है तो पहला ईयर है वो तो निकल जाता है, तो सेकंड ईयर से D2D में लिया है, तो अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ। अभी आप थर्ड ईयर में हैं तो इस साल एलिजिबल नहीं है बेसिकली। इसके लिए क्या हो कि क्योंकि जो लेटरल एंट्री वाला जो क्राइटेरिया था हमारी स्कीम्स में, वो पहले एप्लीकेबल नहीं था। तो अभी इस साल तो केवल जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2020-21 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या देर, अभी बहुत जगह अभी भी काउंसलिंग चल रही है स्टेट में, या जो सेकंड ईयर लेटरल एंट्री में ले रहे हैं एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और कोर्सेज में, वही लोग एलिजिबल हैं एआईसीटी प्रगति और सक्षम। जी सोनू भोला जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस प्लीज। एक छोटा सा क्वेरी है दोनों ही हमारे गेस्ट से
जी जी कि सर और मैडम क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है या आपकी नॉलेज में है कि कल को आने वाला है, जो पेरेंट्स विद डिसेबिलिटी हैं, जिनके बच्चे डिसेबल्ड नहीं है, उनके लिए कोई कार्यक्रम है ऐसी सहायता का स्कॉलरशिप के तौर पे? पेरेंट्स और फैमिली मेंबर के लिए अभी तक तो इंडिया में कोई ऐसा सिस्टम बना नहीं है कि जो पेरेंट्स और फैमिली मेंबर को सपोर्ट करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि स्कॉलरशिप में तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। बेसिकली एनएचएफडीसी में सर, जस्ट टू ऐड, एनएचएफडीसी में पेरेंट्स सिबलिंग्स को सपोर्ट करते हैं फाइनेंस के तौर पे, वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, या स्कॉलरशिप का सपोर्ट नहीं है सर। नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट है, स्कॉलरशिप का सपोर्ट नहीं है। और सर वन क्वेश्चन जी वो संगीता मैम से है कि वो एसएससी के लिए अगर हम फ्री क्लासेस करना हो तो वो समझ में नहीं आया था, मैम ने समझाया था। उसमें आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, जो आपको एंट्रेंस के लिए निकलता क्वालिफाई करेंगे तब आपको फ्री कोचिंग मिलेगा। और उसमें आप जाएंगे, अगर साइट पे जाएंगे तो आपको कहाँ पर रहते हैं प्रवीण जी आप? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। ओके, आप जब मिनिस्ट्री के साइट, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर के साइट पे जाएंगे, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ऑलरेडी जो है वो किया हुआ है, चिन्हित किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप गुजरात से, सपोज वो गुजरात में नहीं है और दिल्ली में है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप दिल्ली में आकर अगर रह के कोचिंग करते हैं तो आपको शायद रहने के भी कुछ पैसे मिलेंगे, और अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए तो आप ओके सर, मैं 85% डिसेबल हूँ। तो मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? आराम से मिल जाएगा। और आपको तो आपको मैं कहता हूँ कि आप केयर गिवर का भी अलाउंसेस लीजिए, आप एक केयर गिवर भी रखिए अगर कर सकते हैं तो, ठीक है। ओके सर वो वेबसाइट फिर से बोलिए ना, वो नहीं समझ। जी मैडम, संगीता मैडम क्या है? वो है वेबसाइट जो है www.disabilityaffairs.government.in। जी, अभी मेरे पास 3 ऐसे फ्री कोचिंग के लिए इंस्टीट्यूट के नाम मेरे पास लिस्ट में है, जिसमें कि 2 तो दिल्ली के ही हैं और एक जम्मू कश्मीर के हैं। दिल्ली का जो है करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी, ये मुखर्जी नगर में है, और वो वेबसाइट से मैंने इसको निकाला, आप भी वेबसाइट देख करके निकाल सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में है 3 अभी यहाँ पर फिलहाल जो है फ्री कोचिंग के लिए दिए गए हैं लिस्ट। 3 है। और ये स्कीम्स है कि कोई एनजीओ भी या कोई करियर, आपके आसपास के कोई संस्था जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को हेल्प करना चाहते हैं, तो वो इस स्कीम में मिनिस्ट्री को ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसका डेट हो तो हो सकता है कि उस संस्था को भी उसमें मिल सकता है। ओप्पो A31 अनम्यूट कीजिए और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर। ओप्पो A31 जी। ओके, श्रेयांश आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, डन। सो नाउ व्हाट आई विल डू कि हमें लगता है कि ये जो अभी हमारे पास एक और शेयर हुआ है disabilityaffairs.gov.in का वेबसाइट भी शेयर किए हैं लोगों ने, तो आप वहां पर जरूर देखिए कि और भी इंफॉर्मेशन है जिससे कि आपको बहुत सारा चीज मिल सकता है, बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है। आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि हमारे पास जेसी गुप्ता सर हैं, ही हैज सम आइडियाज कि कुछ आप फीडबैक एज ए सर। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत बढ़िया आपने विस्तृत जानकारी दी स्कॉलरशिप्स के बारे में। सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है या AICD की है, पब्लिसिटी बहुत कम होती है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो दोनों ही डिपार्टमेंट्स को पब्लिसिटी होनी चाहिए। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसका एक एडवर्टाइजमेंट मतलब जो भी स्कॉलरशिप आने का टाइम है उससे पहले होना चाहिए। वो एक फुल पेज का देते हैं, तो एक अगर छोटा छोटा इंफॉर्मेशन अलग अलग स्कॉलरशिप के देंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। दूसरा, जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनको अपनी सच्ची इंफॉर्मेशन, सच्ची जानकारी वहां देनी चाहिए। दे शुड मतलब ना तो कुछ छुपाना चाहिए ना झूठ बोलना चाहिए।
क्योंकि झूठ बोलने से उनकी स्कॉलरशिप बाद में आने से वो रिफंड हो सकता है, उनके ऊपर केस हो सकता है, तो वो सब चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। NHFDC का जो है वो स्कॉलरशिप नहीं है, दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। वो मतलब आर्थिक सहायता देते हैं। जैसे एक डिसेबल्ड व्यक्ति है, उसने कोई काम कर लिया, काम सीख लिया, मगर अभी वो उसके पास में अपना वो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहता है या अपना काम शुरू करना चाहता है, तो उसके पास में उसके लिए पैसा नहीं है, तो NHFDC से उसके पास में वो पैसा मिल जाता है। अगर उसके पास में अपनी दुकान या जगह है तभी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो इस तरीके से दे गिव टू NGOs आल्सो फॉर मेंटेनेंस। तो स्कॉलरशिप के बारे में मैं प्रोफेशनल्स को, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी इसको देख रहे हैं, उनसे यही कहूंगा कि श्रीवास्तव जी ने या संगीता मैडम ने जो भी वेबसाइट्स बनाई हैं, उन वेबसाइट्स को आप अच्छी तरह जाएं, देखें और जानकारी लें। नंबर 1, जानकारी को अपने पास तक रखें, ना रखें उसको वितरित करें आगे, इट शुड बी स्प्रेड। तो हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि जो जानकारियां स्कॉलरशिप के बारे में है उनको ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के पास में पहुंचा दें, नंबर 1। नंबर 2, आपके एरिया के अंदर जो भी IITs हैं, ITIs हैं, वहां पर उनके जाकर के प्रिंसिपल के पास में जाकर के वो एक उनसे परमिशन लेकर के पोर्टल वहां पर ही लगा दें। आप प्रिंट लेकर के एक पेपर हम वहां पर लगा सकते हैं ताकि वो सब कुछ लोगों को पता लग जाए। तो सर सबसे बड़ी बात जो है इन स्कॉलरशिप्स के बारे में, क्योंकि व्हेन आई वाज वर्किंग इन द मिनिस्ट्री, तो आई वाज ए पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन बोर्ड जो था उसका मैं हिस्सा हुआ करता था। तो स्कॉलरशिप का पैसा हमारे पास में ज्यादा होता था, स्लॉट्स बहुत ज्यादा होते थे और एप्लीकेशन हमारे पास में कम आती थी। और वो कम आने का कारण यही होता था कि अवेयरनेस नहीं थी लोगों के अंदर। तो अवेयरनेस हैज टू बी क्रिएटेड। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट। और मैं आपका जो एक प्रेजेंटेशन है वो मैं देखता हूँ, अगर मैं शेयर कर सकूँ तो मैं सबसे शेयर कर देता हूँ। और मैं अमित सर से भी कहूँगा कि अगर वो बॉक्स में अपना प्रेजेंटेशन फाइल अपलोड कर दें तो वहाँ भी हो सकता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है जो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ वो हमारे गुप्ता सर ने बनाया हुआ है आप सबके लिए। तो आपको अगर चाहिए तो ये प्रेजेंटेशन से आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आई वुड लाइक टू टेल यू हियर मैं अब अंत में जो है कि ये जानना चाहूंगा कि आप सभी को अच्छा लगा है। आप सभी ने बहुत ही अच्छा रिमार्क्स दिए हैं, मैं देख रहा हूँ सभी लोगों को काफी अच्छा लगा है ये प्रोग्राम आज का, खास करके आज का प्रोग्राम ऑन स्कॉलरशिप। सो वी आर कमिंग ऑन वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे ऑन November 14th at 3 PM with the dance and music therapy program। उस पे हम लोग बातचीत करेंगे अपने मशवरा में। और जैसे कि हम अभी आपको बता रहे थे कि मशवरा एंड मन भावन टीम in collaboration with Manovikas family is celebrating virtual Diwali Utsav 2020 on Tuesday, November 10th at 3 to 5 PM on Zoom and other social medias. So to make your Diwali special, please Manovikas is doing this bumper prize kind of thing, तो आप उसमें करिए। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको एज ए डोनेशन रिसिप्ट भी मिलेगा टू योर इनकम टैक्स एग्जम्पशन। तो आपको मैंने लिंक शेयर किया है, उसको जरूर आप उसको देखिए। और देन अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज माय प्लेजर टू एक्सटेंड माय हार्टफेल थैंक्स ऑन दिस 55.0 एपिसोड ऑफ मशवरा। I, on behalf of Mashwara team and Manovikas family and entire fraternity of the institution, first of all extend my most sincere thanks to Almighty God, and on my own behalf I extend very heartfelt thanks to our expert Dr. Amit Kumar Srivastava जी। सर आपसे बहुत पहले हमारी बातचीत हुई थी, उसके बाद ये सारा बहुत ही अच्छा आज आपने प्रेजेंटेशन दिया है और टाइम निकाला मनोविकास के लिए और मशवरा के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपका तहे दिल से बहुत ही लगता है कि शुक्रिया कर रहा हूँ कि आप आए और आप बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन हमारे लोगों तक पहुंचाया। एंड थैंक यू इंदिरा मैडम, योर इंफॉर्मेटिव, संगीता मैडम, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एड्रेस जो आपने एकदम
सर बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपने प्रिपेयर किया। और मैंने कल परसों ही आपको बोला कि जो मिनिस्ट्री से जो आने वाले थे वो लोग नहीं आएंगे, आपको करना है, और काफी एलोबरेटिव था। तो मैं ये चाहूंगा कि जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो जरूर हम रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकते हैं सोशल मीडिया में या कहीं भी। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है, और प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो 6 अम्ब्रेला स्कीम आपने बताया है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। सो थैंक यू ऑल, एंड आई मस्ट mention here my deepest sense of appreciation for JC Gupta sir. This is always pleasure for us कि आप आते हैं और बहुत अच्छी कोई बात बता के दे जाते हैं। So thank you very much sir. Thank you very much sir. And big thanks to our volunteer Adya, Namo Narayan, Amjad, and there is a one person, his name short name is the MLA on WhatsApp and Facebook. तो वो भी बहुत अच्छा हमारे लिए सपोर्ट करते हैं। आप सभी सपोर्ट कर सकते हैं, जस्ट यू शेयर आवर पोस्ट टू रीच मोर देन मेनी पीपल। आप जो हमारे सोशल मीडिया के पोस्ट होते हैं, ट्विटर के पोस्ट होते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों तक हम ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो आप जो वॉलंटियरिंग कर रहे हैं सिर्फ मशवरा के लिए नहीं कर रहे हैं, अगर इसमें से कोई एक भी व्यक्ति इस स्कीम से प्रभावित हो गया, उसको कोई फायदा मिल गया, तो बहुत आने वाले समय में बहुत ही वो आपका जो एक क्लिक था वो बहुत ही मीनिंगफुल होगा, बहुत ही उसका वैल्यू होगा। And I also extend my thanks to all my staff members for their enormous cooperation in organizing this episode of Mashwara, and Rakhi for sign language interpretation, Kanishka for working on the Facebook Live, then Indra for helping on the Zoom, Nishtha and Dharamjeet, Sangeeta madam, Kallu Khan sir, Ruby madam, everyone, thank you very much. And we are very much fortunate enough to be backed by you all as a Manovikas family member, and I salute your motivation and dedication. Finally, the wonderful guests and participants for your active participation with such a great affiliation with Mashwara and all the programs. It is really incredible. मैं यहाँ पर एक चीज अपने जितने भी participants हैं, जितने भी आप सभी हैं, मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इसी समय में होते हैं, सेम समय में होते हैं, फिर भी आप मनोभावन को या मशवरा को प्रायोरिटी देते हैं। ये इसके लिए सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि आप जरूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। इस प्रोग्राम के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होता है कि कोई आपको फिर से कोई सूचना चाहिए, तो आप जरूर हमें लिखिए। हमें खुशी होगी कि हम आपके बात को, आपके सारे इंफॉर्मेशन को एक लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और एक चीज और भी, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो आना चाहते हैं, मशवरा में कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज है उसका फॉर्म है हमारे mashwara.live पर। आप वहां पर फॉर्म को फिल कीजिए और उस पे आप अगर हमारी कमिटी उसको सेलेक्ट करती है तो आप हमारे मशवरा में आ सकते हैं एज ए एक्सपर्ट, एज ए स्पीकर। आप अपनी बात को बता सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंड थैंक्स अ लॉट टू one and all directly or indirectly involved in this program, and सभी को धन्यवाद। मैं इस मशवरा एपिसोड में आप सभी की मेजबानी करने के लिए आप सभी का सम्मान व्यक्त करता हूं, आप सभी के लिए आभार व्यक्त करता हूं। खास करके हमारे जो विशेष वक्ता हैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव जी, मैडम संगीता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स हैं, हमारे मनोविकास के गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स हैं, बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं। सभी के लिए मेरा अपना बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और आप सभी स्टाफ को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने बहुत ही कड़ी मेहनत से हर एपिसोड की सफलता दिलाई है, और आज के भी एपिसोड की सफलता आपके साथ थी। अंत में सभी सम्मानीय मेहमान, प्रतिभागी, आप सभी की सक्रिय भागीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई एम शेयरिंग यू हियर द फीडबैक लिंक। आप फीडबैक लिंक आप भरें and then you get the certificate. So thank you all. Okay, मैं किसी का हैंड रेस तो नहीं देख रहा हूँ। So thank you संगीता मैडम, thank you गुप्ता सर, thank you अमित सर, thank you all sir, thank you.